इक्वेशंस में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हमने टू टाइप्स के क्वेश्चन कर लिए थे. फर्स्ट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सेकंड इज जनरल. नेक्स्ट वी हैव दिस. कितनी टाइप्स हो गई थी? आई थिंक मैंने मेजरली टू ही टाइप्स लिखवाई होंगी. नेक्स्ट वी हैव दिस थर्ड टाइप, that sin square theta is equal to sin square alpha. If we have a question of this type, that sin square theta is equal to sin square alpha, then we have this formula. Theta is equal to, or we'll write here, theta is equal to n pi plus minus alpha, where n belongs to any integer. ठीक है, एनसीईआरटी लेवल हम कंप्लीट कर चुके हैं, इवन उससे ज़्यादा ही हमने कर लिया है, बट देर आर सम टॉपिक्स विच आर नॉट इन एनसीईआरटी, बट इन सम स्कूल्स दे आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दिस, सो हम कर रहे हैं फिर. Second, we have this formula that cos square theta is equal to cos square alpha. So theta is equal to n pi plus minus alpha, where n belongs to any integer. We have third formula, whenever tan square theta is equal to tan square alpha. So we have this formula, theta is equal to n pi plus minus alpha, where n belongs to any integer. Okay? We will prove these theorems one by one. Please note down these formulas. That is questions based on this. ठीक है, सो रब कर दें इसको. Proof. We have this sin square theta is equal to sin square alpha. Minus, we have a formula of cos in terms of sin square. What is that formula? Minus, we have one formula in terms of cos 2 theta in terms of sin square theta. We have this formula 1 minus cos 2 theta, which is equal to what? 2 sin square theta. याद आ रहा है ये? 1 minus cos 2 theta is equal to 2 sin square theta. सबको याद आ गया? मानस, कृष्पल, यश. Yes. मानस, मुझे Yes, voice. sir. So it's actually networks are a little weak here. Okay, so please use the chat box. ठीक है? Yes, sir. So we have these two formulas. मैंने कहा था these are very important formulas. 1 minus cos 2 theta and 1 plus cos 2 theta. So from this we can say that 1 minus cos, we can say that 1 minus cos 2 theta by 2 is equal to 1 plus cos 2 theta, sorry, 1 minus cos 2 theta by 2. So this 2 cancel, 1 cancel. So finally we get cos 2 theta is equal to cos 2 alpha. So from this, अब ये फॉर्म हो गया cos theta is equal to cos alpha. So उसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है? This is equal to 2 n pi plus minus alpha. In place of alpha we have 2 alpha, and in place of theta we have 2 theta, where n belongs to any integer. So from this we will get theta is equal to n pi plus minus alpha, and n belongs to any integer. ठीक है? Please note down this, फिर second and third का भी हम proof कर लेते हैं. Done, sir. Done? Manas and Yash, done? Manas, please use the chat box. If you have a network issue, please Yash, मुझे उस पर आप reply कीजिए. I don't know, यश की आवाज नहीं आ रही मुझे. कोई बात नहीं. ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया. So we are starting the next one. Second कैसा था? यश, मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, ठीक है, कि आपने नोट किया या नहीं किया. प्लीज रिप्लाई ऑन द चैट बॉक्स.
So second, we have this formula cos square theta is equal to cos square alpha. So we again have this formula 1 plus cos 2 theta is equal to 1 plus, sorry, this is 2 cos square theta. So from this we can say this is 1 plus cos 2 theta by 2, and this is equal to 1 plus cos 2 alpha by 2. So 2 cancel, 1 cancel, we finally get cos 2 theta is equal to cos 2 alpha. And from this we can say 2 theta is equal to 2 and pi plus minus 2 alpha to alpha. So divide this complete with 2, so we get theta is equal to n pi plus minus alpha. Okay? So this is the answer. Please note down this. Done, sir. Done. That's it. Yes. Okay. Done, sir. Done. यश यश हुआ या नहीं पता नहीं चल रहा मुझे. Now third we have this tan square theta is equal to tan square alpha. So in this what we can do, हम इसको ये लिख सकते हैं 1 minus tan square theta is equal to 1 minus tan square alpha. है ना, इक्वेशन सेम रहेगी. लेट दिस बी फर्स्ट. हमने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई किया बोथ साइड विद माइनस और 1 ऐड कर दिया. सो वी गेट दिस. छोटा सा स्टेप है, सो कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है. लेट दिस बी फर्स्ट, दिस बी सेकंड, एंड सिमिलरली वी कैन से दिस 1 plus tan square theta is equal to 1 plus tan square alpha. ठीक है. लेट दिस बी थर्ड. सो हम क्या कह सकते हैं इसमें, डिवाइड 1, वो भी सेम हो जाएगा. 1 ऐड किया बोथ साइड, वी गेट दिस इक्वेशन. सो डिवाइड सेकेंड बाय थर्ड. तो कितना आ जाएगा, 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta, and this is equal to 1 minus tan square alpha by 1 plus tan square alpha. ये किसका फॉर्मूला होता है, सर cos 2 theta. ये कॉस. यस सर. या सर शायद ये मेथड हमारा कंपोनेंट और डिविडेंडो हो गया है ना शायद. हाँ, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो वो ये रहता है बच्चे, a by b is equal to c by d. So a plus b by a minus b, c plus d by c minus d. ये यहाँ पर हुआ है ना सर. c minus d. तो अगर हम देखें तो हमारे पास तो ये था. अच्छा, हमने अगर ऐसे हम ही कर 10 लिया. स्क्वायर थीटा बाय 10 अच्छा अच्छा, हाँ हमने वही रेसिप्रोकल कर दिया ना. यस. थोड़ा सा रेशियो फाइंड करके करना होगा, है ना. वो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आता भी ऐसे ही है कि पहले प्लस किया फिर माइनस किया फिर डिवाइड कर दिया, है ना. किस आता भी ऐसे ही ये है ना कि यहाँ पे +1 कर दिया तो ये आ गया a plus b by b, c plus d फिर by, माइनस फिर माइनस कर दिया a minus b by डिवाइड. b, c minus d by d, फिर डिवाइड कर दिया. वहीं से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आता है, ऑलमोस्ट वैसे ही हमने यहाँ भी कर दिया. ठीक है. सो ये किसका फॉर्मूला हो गया, cos 2 थीटा. ये किसका फॉर्मूला हो गया, cos 2 अल्फा. तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आ गया, 2 थीटा इज इक्वल टू 2 n pi प्लस माइनस 2 अल्फा. डिवाइड दिस विद 2, so थीटा इज इक्वल टू n pi प्लस माइनस अल्फा. क्लियर हुआ इतना. यस सर. So for all the three equations we have the same formula, theta is equal to n pi plus minus alpha. So please note down this. I think note कर लिया है. यश प्लीज रिप्लाई कर दीजिए. अच्छा, यश का आ गया रिप्लाई. ओके ठीक है, यश नोट कर लिया. Yes, sir. Okay, then try this question. Question is 7 cos square theta, 7 cos square theta plus 3 sin square theta is equal to 4. Please try this. 7 cos square plus 3 sin square is equal to 4. Try to complete this.
सर शायद n pi plus minus pi by 3 Your answer is n pi plus minus pi by 3 pi by 3. This is the answer. Theta is equal to n pi plus minus pi by 3. Yash and Manas. Done? Yes, sir. Done, sir. Okay. Yash, completed? Done, sir. Done? Okay. कैसे किया? cos स्क्वायर को चेंज कर लिया into sin स्क्वायर, है ना? यश अगर डाउट है तो प्लीज बता दिएगा. नेक्स्ट इज सॉल्व 2 sin square x plus sin square 2x is equal to 2. Please try this question. 2 sin square x plus sin square 2x is equal to 2. Try to do this question. So n pi plus minus n plus minus 1 to the power n 5 pi by 2. Answer is सर x is equal to n pi, then Plus minus Plus- 1 to the power n plus minus 1 to the power minus 1 to the minus 1 to the power n n and 5 pi by 2. 5 pi by 2. Only this answer? ये यहाँ plus minus है? हेलो सर No, no, sir. Uh, Sir, there is only plus. There is only plus. Khaswal, बस एक मिनट. There is only plus. And the second is 5 pi by 4. 5 n भी आएगा ना उसमें भी? And n is also there. Okay, 5 n pi by 4. Yes. Okay, अभी चेक कर दें. खसफल आपके आंसर्स क्या हैं? x is equal to n pi और n n pi pi plus minus pi by 4 pi by और सर वो एक pi by 4 और भी है. और n pi सिर्फ n pi और कुछ नहीं? नहीं सर. ओके, ठीक है, इसको चेक करते हैं. दिस इज 2 sin square x, तो यहाँ तो हमें कुछ नहीं करना. प्लस sin square 2x, so we can write sin 2x का whole square. This is equal to 2. Now this is what this 2 sin square x plus this can be written as 2 sin x and cos x whole square is equal to 2. This is what this is 2 sin square x plus this is 4 sin square x, this is cos square x is equal to 2. So divide this complete equation with 2, so we will get sin square x plus 2 sin square x cos square x is equal to 1. ठीक? Now this is 2 sin square x, so we have the issue with this 1, है ना, क्योंकि वहाँ 0 होना चाहिए, तो हमने इसको शिफ्ट कर दिया.
Now 1 minus sin square x एक formula होता है. So we have written this as 2 sin square x cos square x minus 1 minus sin square x is equal to 0. So we get this 2 sin square x cos square x, and this is minus cos square x is equal to what? 0. So take cos square x common. So you will get 2 sin square x minus 1 is equal to 0. So from this we get cos square x is equal to 0, or 2 sin square x is equal to minus 1 is equal to 0. So from this we have cos x is equal to 0, or, and from this one we have sin square x is equal to 1 by 2. So this can be written as sin square x is equal to 1 by root 2 ka square. So this can be written as sin square x is equal to, so this is sin pi by 4 whole square. So ये वही टाइप हो गई. So x हमारे पास आ गया. So we get x is equal to n pi plus minus alpha means plus minus pi by 4. इतना ठीक है सबका. Now ये था हमारा cos x is equal to 0. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? X is equal to what? 2n plus 1 pi by 2. किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, या तो ये हो सकता है, या फिर ये, अच्छा ये स्क्वायर भी था है ना, तो स्क्वायर का ही हम फॉर्मूला या तो पुट कर दें. वी हैव दिस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 0. तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, दिस इज cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर पाई बाय 2. तो ये हमारे पास आ जाएगा cos x इज इक्वल टू, सॉरी, ये हमारे पास आ जाएगा फिर x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2. ठीक है, बोथ आंसर करेक्ट. वो भी आंसर करेक्ट था, ये भी करेक्ट है. कोई इशू नहीं है इसमें. क्लियर हो गया? तो कस्टमर आपका शायद नेक्स्ट आंसर कितना आया था? ये बस एक तो ये आ गया था, और सेकंड n पाई. n पाई तो नहीं आना चाहिए. cos 0 आ रहा था ना शायद, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 0. जीरो जीरो को cos 0 दिखता है. नहीं नहीं, cos 0 1 होता है. cos 90 इज 0. yes, ठीक है, वही मिस्टेक कर रहे थे आप. हाँ क्लियर जी, हो गया? yes. मानस कोई और मेथड यूज किया था? मानस, यू हैव ट्राई अनदर मेथड. मानस का नेटवर्क इशू है. ठीक है, सो मानस प्लीज नोट कीजिएगा, दीज टू आर द आंसर्स. ठीक है, नाउ दीज टू क्वेश्चंस आर होमवर्क. दिस आर होमवर्क. प्लीज ट्राई कीजिएगा. नहीं होता देन आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास, बट हो जाएगा. So, छोटी सी कैलकुलेशन है, हो जाएगा कुछ. sin 3 अल्फा is equal to 4 sin alpha sin x plus alpha sin x minus alpha, where alpha is not equal to n pi and belongs to z. ठीक. And note the answer of this. इसका जो आंसर है, that is x is equal to n pi plus minus pi by 3. Please try this question in homework. N belongs to any integer. Next question, solve 4 sin x sin 2x sin 4x is equal to sin 3x. Please try this question, and the answer is x is equal to n pi
x is equal to m pi plus minus pi by 3, where m and this. ठीक, प्लीज नोट दीज टू क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस, और हो जाएंगे, ये सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ हमारी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। हाँ, नोट किया सबने? नोट किया सबने? सर उसे अभी सॉल्व करना। नहीं, अभी नहीं, दीज टू आर होमवर्क, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हमें लग जाएगा, वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। नहीं होता तो मैं करवा दूंगा, बट ये हो जाएगा। सो नेक्स्ट वन, नोट कर लिया ना सबने? यश एंड मानस, यश नोट कर लिया था? Yes, sir, noted. ओके ओके। नेक्स्ट टाइप, टाइप 4। Type 4 is equation of the form a cos theta plus b sin theta is equal to c, where mod of c is less than equal to under root of a square plus b square। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a cos theta plus b sin theta is equal to c, where c is this। So in these types of question आपको क्या करना है, always find, steps लिख लेते हैं। Step 1, you have to always find r is equal to under root of a square plus b square। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उससे देखेंगे, ठीक है, वो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, अब फिर ये स्टेप याद करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन लेते हैं, उसे देखते हैं। सो क्वेश्चन इज solve this √3 cos theta plus sin theta is equal to √2। ठीक है, so आपको क्या करना है, these types of question, calculate, you always first of all you have to calculate r, which is equal to under root of a square plus b square. Then you have to put a is equal to r cos alpha and b is equal to r sin alpha, and r and b is equal to r sin alpha। And what is alpha? Divide this, so ये आ गया tan alpha is equal to b by a। So in these types of question, what we have to do, we have to put a is equal to r cos alpha, we have to put b is equal to r sin alpha। What is alpha? Alpha we will find from this। ठीक है, so in this question, first of all we will calculate r। So what is r? R is a square plus b square, इसका मतलब 3 plus 1। ठीक है, इसको हम कंपेयर करेंगे, a we get √3, b we get 1, so r is this is equal to 2। Next you have, and now what is alpha? So tan alpha कितना आ जाएगा? So tan alpha कितना आ जाएगा? b by a। What is b? b is 1, a is what? √3। So 1 by √3 tan में कब आता है? This is equal to tan alpha is equal to tan pi by 6। So we get alpha is equal to what? Pi by 6। So what we will do, we will put a is equal to root r cos alpha। What is a? A is √3 is equal to r is what? 2 into cos alpha। Cos alpha means cos pi by 6। ठीक, so similarly in place of b we will put, b is what? 1, we will put r, r is 2 sin alpha। Sin alpha means sin pi by 6। Please note this, यहाँ तक note कीजिए। सर Done? ये सर जी जी बताइए। ये ऐसे कर सकते हैं सर कि
and divide and multiplied by a square root of a square plus b square, क्योंकि हाँ पहले में ये शायद भी हो सकता अकाउंट है, जी जी ये भी हो सकता है, बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। ठीक है, मैं दोनों से बता देता हूँ, जो भी आपको बेटर लगता है यू कैन यूज दैट। ठीक, ओके थैंक यू सर। ओके वेलकम। ठीक है, इतना सबने किया। इतना सबने किया, मानस यस एंड यस यश, Yes, sir. मानस एंड यश completed, Yes, sir. okay। सो अब यहाँ हम पुट कर देते हैं दिस बी फर्स्ट, इन प्लेस ऑफ रूट 3 हम ये वैल्यू पुट करते हैं 2 cos pi by 6 and this is cos theta plus यहाँ 1 है, 1 into sin theta, in place of 1 we will put this value 2 sin pi by 6 is equal to root 2। सॉरी दिस इज 2 sin pi by 6 और यहाँ था sin theta है ना, this sin theta, so 2 कॉमन लेके वहाँ डिवाइड कर देंगे, so this we get cos pi by 6 cos theta plus sin pi by 6 sin theta, तो ये आ जाएगा रूट 2 बाय 2, so this we get cos pi by 6 this cos theta plus sin pi by 6, this is 1 by root 2। Now this is a formula of cos theta minus pi by 6, cos theta minus pi by 6, so this is equal to what, 1 by root 2, so in place of 1 by root 2 we can write cos pi by 4। Now cos का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा माइनस पाई बाय 6 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 and pi प्लस माइनस अल्फा, सो इन प्लेस ऑफ अल्फा वी हैव पाई बाय 4, सो हम 2 वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, विल फाइंड 2 वैल्यूज, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा थीटा माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2 and pi प्लस पाई बाय 4 और थीटा माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2 and pi माइनस पाई बाय, सो थीटा कितना आ जाएगा 2 and pi प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6, सो थीटा कितना आ जाएगा 2 and pi और ये कितना हो जाएगा, LCM is 12, so you get 3 pi plus 2 pi, तो ये आ गया थीटा इज इक्वल टू 2 and pi प्लस 5 pi by 12, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा 2 and pi माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा 2 and pi, ये कितना हो जाएगा माइनस 3 पाई प्लस 2 पाई, सो ये आ जाएगा माइनस पाई बाय 12, सो वी गेट दीज टू आंसर्स, सो प्लीज नोट डाउन दिस, और नेक्स्ट मेथड भी पे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उससे कैसे होगा। नोट कर लिए सबने, मानस एंड यश, सर Yes, sir, noted. क्या ठीक है, प्लस सर हाँ जी कसबर, वो मैंने ऐसा किया था, cos pi by 6 cos theta plus sin pi by 6 sin theta है ना सर, इक्वल टू 1 by root 2, उसको cos pi by 6 माइनस थीटा कर दिया, ऑर्डरिंग चेंज करने पर कुछ हाँ नहीं तो होगा उससे सर। कुछ नहीं है, वो नेगेटिव चेंज हो जाता है, माइनस में आ जाता है हाँ लास्ट वो, लास्ट में आंसर चेंज हो गया, हाँ लास्ट में वही साइन n के साथ एक नेगेटिव आया होगा, बट n की जब हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे ना वी गेट ऑल द आंसर्स जो वो आपके पास सेटिस्फाई भी आ, करेगा। हाँ ओके जो सर, आपके आंसर्स आ रहे हैं वही ये इक्वेशन भी आंसर देगी। ओके सर, ठीक, सो दिस इज द फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड देख लीजिए, सो जो भी आपको मेथड बेटर लगे यूज दैट।
So Crispal is saying that we can solve this question by second method also. So question था आपका √3 cos theta plus sin theta is equal to √2. This is the question. तो सेकेंड मेथड की हम क्या करते हैं कि हमारे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है a cos theta plus b sin theta is equal to c. So what we will do, we will find r, which is under root of a square plus b square. कितना है वो 3 plus 1 which is equal to 2, and we will divide this complete equation with this 2. Let this be first. So divide equation 1 by 2. तो ये कितना हो जाएगा √3/2 cos theta plus 1/2 sin theta is equal to √2/2. √3/2 cos theta plus 1/2 sin theta is equal to 1/√2. So √3/2 in terms of cos क्या होता है cos pi/6 और 1/2 क्या होता है sin pi/6 is equal to 1/√2. ठीक है. Now you can apply the same formula. उसके बाद अब तो इक्वेशन हो जाएगी है ना सेम फिर वही आ जाएगा cos theta minus pi/6. So there are both the methods. You have the choice to use any of the method. ठीक तो यहाँ से वही आ जाएगा again theta is equal to 2n pi plus 5 pi/12 और next आ जाएगा सर theta is equal to 2n pi minus pi/12 and belongs to integer. ठीक है. हेलो सर, जी कस्पर बताइए. हम यहाँ पर सिर्फ कॉस के टर्म्स में ले रहे हैं सर, √3/2 को अगर हाँ हम साइन इसलिए ले रहे हैं नहीं हम साइन में इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि साइन में वो जो -1 आता है ना अल्फा के साथ उसको फिर सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है. वो सॉल्व होता नहीं है एग्जैक्टली. मतलब अगर आपके पास एक ये आ गया एंगल -1 अल्फा pi/3 और नेक्स्ट आ गया +5/3. अब ये ऐड नहीं कर पाते हम. तो वैसे ही रख सकते हैं सर. हाँ रख सकते हैं बट बेटर ये कॉस्ट में कर दें ताकि कॉस्ट में फिर सॉल्व हो जाए. ठीक है इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर हमारे रेशियोज अगर ऑप्शन है साइन एंड कॉस दोनों का तो हम कोशिश करते हैं कि बोथ द रेशियोज शुड बी इन कॉस आ जाए. अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर. ठीक है ओके. ट्राई नेक्स्ट सॉल्व √2 sec theta plus tan theta is equal to 1. Next we have this √2 sec theta plus tan theta is equal to 1. Please apply the formula. सर जी 2n pi minus pi/4. ठीक है. This is answer 2n pi minus pi/4. और सब Manas and Yash got the same answer. Yes, sir, the Answer same. is theta is equal to 2n pi minus pi/4 and belongs to any integer. Yash complete हुआ. Yash got the same answer. No, sir. No. Okay. This is √2 and sec theta can be written as 1 by cos theta plus tan can be written as sin by cos equal to 1. So this is √2 plus sin theta is equal to cos theta. So we can write it √2 is equal to cos theta
minus sine theta. So we got this cos theta minus sine theta is equal to √2. ठीक है यश, अब हो जाएगा सेम फॉर्मूला, √1 + 1 √2 आ जाएगा, डिवाइड बोथ साइड पर जो सॉल्व करेंगे फिर। ठीक है यश, r कितना आ जाएगा, √1 + 1 1 square + 1 square is equal to √2, divide both the side with √2, so 1 by √2 cos theta minus 1 by √2 sin theta is equal to 1. So we can write it cos pi by 4 cos theta minus sin pi by 4 sin theta is equal to 1. Okay? So this can be written as cos theta plus pi by 4. This is equal to 1. Okay? So this can be written as cos theta plus pi by 4 is equal to cos 0 degree. So we will get theta plus pi by 4, 2 and pi plus minus alpha is 0. So theta is equal to 2 and pi minus alpha. ठीक है यश, दिस क्वेश्चन इज होमवर्क, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे cot थीटा प्लस cosec थीटा is equal to √3 and note the answer. This question is homework. Note the answer. Answer is theta is equal to 2 n pi plus pi by 3, where n belongs to any integer. So please note down this. Theta is equal to 2 n pi plus pi by 3 and belongs to any integer. ठीक है, so this trigonometric equation is complete. अब हम ग्राफ करेंगे which are again not in NCERT but एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, उसको हम करते हैं अब कंप्लीट। यश हो गया, रब कर दे इसको। Yes, sir. So next topic is graph of trigonometric functions. Okay, so trigonometric equation उतना ही था, इसको प्लीज रिवाइज कीजिए, डू ऑल द क्वेश्चंस। अब हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ है, ग्राफ के बाद हमारे कुछ और अदर फॉर्मुलेज हैं which are again not in the main exercise of NCERT but given at the back side of the NCERT, तो आप वो चेक करेंगे तो वहाँ भी है। तो इस क्लास में हमारा ग्राफ होगा एंड वी विल ट्राई, बट नहीं हो पाएगा, ग्राफ ही आज कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्लास में वो टॉपिक कंप्लीट करके ट्रिगो विल कंप्लीट। ट्रिगो इज द लेंथीएस्ट चैप्टर आई थिंक। ठीक है, चलिए ग्राफ देखते हैं। सो फर्स्ट इज साइन थीटा। ठीक है, फर्स्ट ग्राफ इज साइन थीटा, और वी कैन से y is equal to sin x। हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y is equal to sin x। so I'm sorry, ठीक है, चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दिस इज 0, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई। एक काम करते हैं, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं फिर ये लिखते हैं।
ठीक है, दिस इज 0 1 -1। नाउ साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 साइन? 1। सो ये मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो ये किस एंगल पे आएगी? एट π/2। अब देखिए साइन 0 पे वैल्यू क्या होती है? 0। π/2 पे 1। पाई पे साइन की वैल्यू क्या होती है? अगेन 0। 3π/2 के लिए वैल्यू क्या हो जाती है? -1। यहाँ -1 आ गया। फिर ये कितना है? 2π, उसके लिए 0 हो जाती है। फिर ये कितना आ गया? 5π/2, उसके लिए 1 हो जाती है। एंड दिस इज व्हाट? 3π। अब यहाँ देखते हैं, अपोजिट साइड है 0 है, तो ये कितना हो गया? -π/2। ये कितना हो गया? -π। ये कितना हो गया? -3π/2। और ये कितना हो गया? -2π। So this is the graph of sin x। ठीक है, so this is a graph of sine, this is x, this is y, it's dash। क्लियर हुआ सबको? सर। मानस, यश, क्लियर हुआ ग्राफ? हेलो। हेलो, हाँ यस कस्पर। ये सर क्लियर हो गया। ओके यश। y is जी कस्पर। y is equal to sin x एक लीनियर इक्वेशन है ना सर? नहीं, लीनियर नहीं है, साइनसॉइडल है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। लीनियर तो ये होती है y is equal to x। दिस इज द लीनियर इक्वेशन। इसके ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन हो जाता है, 10th में ड्रॉ किया है आपने, है ना? ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, साइनसॉइडल फंक्शन है। तो साइनसॉइडल आप फिजिक्स में भी करेंगे। देखिए ये सॉर्टेड। साइनसॉइडल फंक्शन, साइन इस फंक्शन को हम कहते हैं साइनसॉइडल फंक्शन। तो इसको आप फिजिक्स में भी करेंगे। ठीक, तो अब ये जो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनके ग्राफ आपकी टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में साइन और कॉस आप बहुत यूज करेंगे। जब एसी करंट पढ़ेंगे तो उसमें साइन एंड कॉस का ग्राफ काफी, साइन के ग्राफ काफी आएगा। तो सबको ये क्लियर हुआ, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसमें एक टर्म आती है हमारी, डोमेन एंड रेंज। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन हम करेंगे फंक्शंस में। जब हम फंक्शंस करेंगे उसमें इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन करेंगे। बट यहाँ हम समझने के लिए कहते हैं डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा आपके जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं ऑन दिस एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए ग्राफ डिफाइन है, जिन पॉइंट्स के लिए ग्राफ डिफाइन है, दैट इज द डोमेन। फंक्शन में हम इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन करेंगे, ठीक है, रिलेशन आएगा, वहां से फंक्शन ड्राइव होगा, तो वहां स्टैंडर्ड डेफिनेशन करेंगे। अभी सिर्फ हम समझने के लिए कर लेते हैं दैट डोमेन क्या होगा। दीज आर ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस फॉर विच दिस फंक्शन इज डिफाइंड। साइन जिन पॉइंट्स के लिए डिफाइन होगा उसको हम कहते हैं डोमेन। तो क्या एक्स एक्सिस पे कोई ऐसा एंगल है जिसके लिए साइन नहीं है? क्या एक्स एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट है जिसके लिए साइन की वैल्यू नहीं आ रही है आपके पास? कोई भी ऐसा आप यहाँ पे पॉइंट ले सकते हैं, No, कोई भी एंगल ले सकते हैं जिसके लिए साइन की कोई आंसर नहीं मिलेगा आपको? No. नहीं। तो डोमेन इसका क्या हो सकता है? हम कह सकते हैं डोमेन इज आर। आर इज रियल नंबर। yes. यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका जो साइन होगा वो एग्जिस्ट करेगा। सो डोमेन इज आर। मानस एंड यश, क्लियर हुआ? आयोटा के लिए भी डिफाइन होगा। नहीं, आयोटा इज नॉट रियल, आयोटा इज कॉम्प्लेक्स, Okay. है ना? Hmm. So for every real number the graph will exist, sign will exist, so domain is R। क्लियर हो गया यश, मानस? यस सर क्लियर हो गया। ओके यश हुआ? यश क्लियर हुआ? ये आई थिंक हो गया यश, आवाज आपकी कम आई है। नाउ रेंज, रेंज क्या होता है? वो होता है ऑन द वाई एक्सिस। मतलब आप जब डोमेन पुट करेंगे, आप जब अपने साइनसॉइडल फंक्शन में डोमेन यहाँ इन प्लेस ऑफ एक्स वैल्यू पुट करेंगे, तो जो भी आपके आंसर्स आएंगे उसके कंप्लीट सेट को हम कहते हैं रेंज। ठीक है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम फंक्शन में करेंगे। यहाँ हम सिर्फ इतना ही समझ रहे हैं
that x क्या होगा, all those values on the x axis for which the function will exist, for which the sign is exist is domain, and what is the range, all the points on the y axis. कौन से पॉइंट्स, जब आप यहाँ पे इन प्लेस ऑफ x वैल्यू पुट करेंगे, जो भी आपका आंसर आता रहेगा दैट इज द रेंज. तो कोई मुझे बता सकते हैं कि साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? -1 से 1. -1 to 1. Yash and Manas, is that clear? Yash and Manas, ये clear है? Yes, sir. sir. Okay, so this is the range. So please note down the domain and the range. समझ में नहीं आया तो please पूछ लीजिए, because we have 5 other trigonometric ratios and you have to find the domain and the range for all these. Please note down this. सर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, आई एम सॉरी, मैंने ये नहीं बताया आपको. देखिए अब मैथ्स में हम 2 टाइप्स के ब्रैकेट्स यूज करेंगे. एक हम करेंगे ये, इसका मतलब क्या होता है, वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम -1 to 1. जैसे रियल नंबर लाइन पे अगर हम इसको प्लॉट करते हैं, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज -1, दिस इज -2, देन -1 to 1, ये पूरा कंप्लीट आ गया, यानी ये भी है और ये भी है. एक हमारे पास, इसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल. एक हमारे पास इंटरवल आता है 10, ये हम लीनियर इक्वेशन में पढ़ेंगे, ऐसा कुछ -1 to 1, ये ब्रैकेट ऐसा होता है. इसका मतलब क्या होता है, द values between -1 and 1, but the -1 and 1 are not included. तो अगर हम इसको डिफाइन करना है, शो करना है, तो हम ऐसे करते हैं, ठीक है. -1 and 1 जो है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, सो द वैल्यू विल बी बिटवीन -1 and 1. सो ये क्लियर हुआ, दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट, इन दोनों का मतलब क्लियर हुआ. दूसरे नहीं होते. नहीं और होते Yes, हैं, sir. एक क्लोज नेक्स्ट ओपन, इसको क्लोज कर दिए, इसको ओपन कर दिए, ये इसको क्लोज कर दीजिए, इसको ओपन कर दिए, तो ये 4 टाइप्स के आप आते हैं. ठीक है कसफल, कसफल क्लियर है इतना? Manas, Yash, is that clear? Yes, sir. It is clear. It's clear, sir. Okay. Now second is y is equal to cos x. We'll draw the graph of this. This will start from here. Okay, there's a sinusoidal. So ये आपका होता है ग्राफ ऑफ कॉस्ट. तो 0 के लिए वैल्यू 1 हो जाती है, π/2 के लिए वैल्यू 0 हो जाती है, पाई के लिए वैल्यू -1 हो जाती है, देखिए 3π/2 के लिए फिर 0 हो जाती है, 2π के लिए अगेन 1 हो जाती है. यहाँ आते हैं, दिस इज व्हाट -π/2, ये क्या होगा, अगेन -π, ये क्या होगा, माइनस -3π/2. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. ये ग्राफ होता है कॉस फंक्शन का. नाउ व्हाट्स द डोमेन ऑफ दिस, और रियल नंबर्स. डोमेन एंड रेंज. डोमेन, यहाँ देखिए जितने भी एंगल होंगे सबके लिए यू विल, this cos function is defined, so domain is R. And what's the range of this? -1. Again same, -1 to 1. ठीक है, please note down this one. नोट किया सबने? यस.
Manas and Yash, noted? Yes, sir. Okay. Then third one, y is equal to tan x. So tan किस वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होते? tan किस वैल्यू cos के लिए 90 degree 90 degree 90 के लिए ना? So this is pi by 2. नाइन्टी के ऑड मल्टीपल के लिए है ना? So this is pi, this is 3 pi by 2, this is 2 pi, this is 5 pi by 2. So this is what this minus pi by 2, this is minus pi, minus 3 pi by 2. So tan के जो ग्राफ होता है that is something like this. ठीक है? So pi by 2 के लिए not define हो गया, remaining के लिए define रहता है. So anyone can tell me what is the domain of this? all real numbers minus odd multiples of pi by 2. So we can represent that like this, 2n plus 1 pi by 2. Yes. Okay, then what is the range? All real numbers, sir. All real number, great. So range is all real number क्योंकि यहाँ देखिए ये y है आपका, this is y, this is x. So ये कहाँ से कहाँ जा रहा है? माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट. सो माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट का मतलब कंप्लीट r. सो यश एंड कस्पल ये क्लियर हुआ? Yes. Yeah. Okay. Please note down this. Sir, जी कस्पल. रेंज को हम माइनस इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक ब्रैकेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर. उसको ऐसे करते हैं, रियल माइनस नंबर और इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट ओपन इंटरवल लेते हैं. इन्फानाइट कैन नेवर बी इन द क्लोज इंटरवल. ओपन लेते हैं उसको. ठीक? ये और रियल ऑल रियल नंबर्स सेम है ना हाँ, सर? these two are same, दोनों सेम. ठीक है? यस. Next, y is equal to cot x. कॉट का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं. कॉट किसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता? पाई. पाई के लिए है ना, पाई और जीरो.
इसके जो ग्राफ होते हैं like this. ठीक, तो 0 के लिए नॉट डिफाइन आ गया, दिस इज x, दिस इज y. So domain of this कोई बताएगा, what's the domain of this and what's the range of this? All real numbers एक minus. मिनट, यश, मैं यश से पूछूं, यश के आंसर नहीं आए. यश, what is the domain of this? Sir, all real numbers minus Real number minus n n n pi. and pi. Great, Yash. Yash, and what is the range of this? Sir, R. real numbers. All real numbers. This is the range. ठीक है यश, please note down this. So in the domain, can we write x is not equal to n pi? We can say x is not equal to, N pi. so we have to write like this: x is r, sorry, x is equal to r and x is not equal to n pi. ऐसे ही कुछ. r तो आपको Yes. शो करना होगा, Okay. ठीक है. Okay. नॉट के लिए फिर आप नॉट इक्वल टू n pi कर सकते. Okay, sir. रब कर दें इसको. Next we have the fifth graph, Yes, sir. y is equal to cosec x. So this cosec किसके लिए डिफाइन नहीं है? N pi. Hmm? N pi. n pi. Okay. और वन वैल्यू cosec की कब होती है? For 90. which angle? 90. So cosec की वैल्यू 1 होती है for 90. उसके बाद इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे इंक्रीज होता रहता है, नीचे नहीं आता है ये 1. So इसकी जो वैल्यू होती है 1 से ग्रेटर होती है, ठीक है, 1 एंड ग्रेटर देन 1. और जब नेगेटिव साइड में आता है तो उसकी जो वैल्यू होती है -1 होती है, फिर और डिक्रीज करता जाता है. तो आपने भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न किया है उसमें आपने देखा होगा कि इसकी वैल्यू 1 से लेस नहीं होती है और -1 से ग्रेटर नहीं होती है, इसीलिए इसका ग्राफ होता है लाइक दिस. इसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है और फिर इंक्रीज होती है, -1 से डिक्रीज हो जाएगी, -1 से ज्यादा नहीं होगी, 1 से लेस नहीं होगी. So this is the graph of cosec. So Yash, please tell me the domain of this. Yash, please tell me the domain of this. Sir, sir, r minus n pi. R minus n pi. ठीक है, and belongs to any integer. And what's the range of this? Anyone? Sir, Manas? हाँ. r minus माइनस इंफिनिटी से in- -1 तक और 1 से इंफिनिटी तक यूनिट. हाँ, ये भी ठीक है. 1 by 1 सबके आंसर्स लिख देते हैं, ठीक है. हाँ, यश क्या बता रहे थे आप? R minus sir, that square bracket -1 to 1. कुछ ऐसा है ना, ओपन इंटरवल. और खसपल ने बताया था माइनस इन्फानाइट से कहाँ तक? -1 -1. तक. और यूनियन
1 से प्लस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ठीक है, ये यूनियन सेट्स में बताएंगे, इसका मतलब है ये दोनों वैल्यू, ये भी। So you can represent range like this or like this, that is your choice. ठीक है, so please note down this. रब कर दें इसको, हो गया सबका? नोट कर लिया था ना यश? यश कर लिया था ना नोट? Yes. Okay. Express this. This is 0. This is pi by 2. Pi. 3 pi by 2. 2 pi. Minus pi by 2. Minus pi. Sec किस एंगल के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है? 90। 90 के लिए। सो सेक में वैल्यू 1 कब आती है? 0 पे। सो 0 पे 1 आएगी, उसके बाद वो फिर फर्दर इंक्रीज ही करेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से भी इंक्रीज ही करेगा। पाई के लिए -1 आएगी, फिर ये फर्दर डिक्रीज करेगा। यानी ये भी कॉसिक जैसे ही होता है, ये फिर इसके बीच में नहीं आता -1 एंड 1। सो डोमेन, युवराज, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस? Sorry, Yash. Yash, what's the domain of this? Yash, दो अकाउंट से लॉगिन किया है। Okay, minus and decimal, what's the domain? All real numbers. और real number except? Minus odd multiples of pi by 2. 2n So we plus can 1. say 2n plus 1 pi by 2 and belongs to any integer. Now what's the range? So minus infinity minus 1 union 1 comma infinity. Great. R minus minus 1 to 1 या फिर minus infinite to minus 1 union 1 to infinite. Both answer are correct. ठीक, so please note down this graph. There is a graph of sec x and there is a domain and range. तो ये एग्जाम में आते रहता है। ठीक है, अब बस ऑलमोस्ट अब नेक्स्ट वीक करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो थोड़ा सा ना उसके फॉर्मूलेज स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक हमारा थोड़ा टाइम बचे। नोट कर लिया सबने? Yes, sir. तो ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हमारा है सप्लीमेंट्री पार्ट। ठीक है, दैट इज द बैक साइड ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज एट द बैक साइड ऑफ एनसीईआरटी। सो दैट साइन फॉर्म, साइन एंड कोसाइन, साइन एंड कोसाइन formulae and their application. ठीक है, साइन कोसाइन formulae and their application.
Suppose we have this triangle. Let this be A, this is B, and this is C. Okay. So what is the angle A? Angle A is the angle made by this side AB and AC. What is angle B? This is the angle between this and this. What is the C? This one. Now, if this is angle A, then opposite to angle A, the side is this. So we will denote this with a small a. This is angle B. Opposite to this angle is the side this. We will denote this with B. This is angle C. Opposite to this is this side. We will denote this by C, the small c. So साइन एंड कोसाइन फॉर्मूलेज हम जब भी यूज करेंगे, ठीक है, तो वहां पे हमारा जो ए बी सी होगा, स्मॉल ए बी सी, वो स्टैंडर्ड हमें यही याद रखना है दैट स्मॉल ए इज द साइड विच इज अपोजिट टू द एंगल ए, small b is side B which is opposite to angle B, and C is opposite to C. So we have this relation that A by sine A, B by sine B, C by sine C. ठीक है, we have this relation. इसको अब हम प्रूफ करते हैं. Suppose from this हमने एक perpendicular ड्रॉ कर दिया. Let this be point M. तो इज perpendicular. Let this be H. तो sin B क्या हो जाएगा? Sin B is perpendicular. Perpendicular कितना है? H by hypotenuse. Hypotenuse is C. So this is in triangle AMB. Similarly in triangle AMC, what is sin C? Sin C is again perpendicular by hypotenuse. Hypotenuse is what? B. So from here we will get C sin B, and from here we will get H is equal to B sin C. ठीक है. H is equal to C sin B. Let this be first, let this be second. So from 1 and 2, from 1 and 2, we will get C sin B is equal to B sin C. So from here we will get sin B by B is equal to sin C by C. ठीक है. Let this be third. Let this be third. क्लियर हो गया इतना सबको? Yes, Is this clear? ठीक है. Yes, So sir. sin B by B is equal to sin C by C. अब सिमिलरली हमें जब A चाहिए, जब A चाहिए तो हम क्या करेंगे? B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो वहां से A आ जाएगा और C आ जाएगा. सिमिलरली जब आप B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो A एंगल आएगा और C आ जाएगा. सिमिलरली वी कैन से दैट sin A by A is equal to sin C by C आ जाएगा. This is fourth. So from third and fourth, from third and fourth, from third and fourth, we will get sin A by A is equal to sin C by C is equal to, sorry, sin B by B is equal to sin C by C. ये मिल गया. ठीक है. So this is the sign formula. In our question we will use this form. ठीक. Please note down this question, this formula, and we will do some questions. बस 2-3 questions करेंगे, फिर उसके बाद next week करते हैं. ठीक है. एक क्लास हमें और चाहिए of 2 hours to complete this topic. नोट कर लिया सबने? Yes, sir. सब. Okay. yes, Next, try this question. In a triangle ABC,
if A is equal to 2, B is equal to 3, and sine A is equal to 2 by 3, find angle. Please find angle B. बताइए कितना आ रहा है? 90 degree. Answer is 90. Yes, 90 degree. 90. Yash, what's the answer? Yash, what is the answer? 90, sir. 90. Please try to do this. Angles इस रेशियो में है, then prove that corresponding sides जो हैं वो इस रेशियो में है. Please कीजिए. Proof, sir. Done. Okay. Angle का ratio given है, so we know that the sum of all the angle is 180 degree. वहाँ से start कीजिए. Proved, sir. So, Yash, Doing, sir. done. Doing. Okay. Then last question. The angles of a triangle ABC are in AP, and it is being given that B is to C is equal to root 3 is to root 2. Find angle A. Please try to do this. Sir, 75. 75. किसका आंसर मानस? Yes, sir. Great. Kasfal हो गया आंसर 75. Yes, sir. Okay. Yash, हुआ complete. अरे कर रहा हूँ सर. आराम से कीजिए, कोई इशू नहीं है. एपी आपको बताया था, आई थिंक मैंने पहले भी. ठीक है, एपी सॉल्व करना है, ट्राई कीजिए.
यश डन No, sir. राइट। चलिए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। Angles of a triangle ABC are in AP. ठीक है, angle A, angle B, angle C, these are in AP. So we know that AP का मतलब क्या होता है? Angle B minus angle A is equal to angle C minus angle B. तो इसका मतलब क्या हो गया? Twice of angle B is equal to angle A plus angle C. एक और B ऐड कर देते हैं both side. So twice of angle B plus angle B is equal to angle A plus angle B plus angle C. कितना हो गया? 3 एंगल बी और तीनों का सम कितना होता है? 180. सो एंगल बी कितना आ गया? 60. यश इतना क्लियर है? यश ये Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके, नाउ वी हैव दिस रेशियो b by c is equal to what? √3 by √2. सो b और c में रिलेशन क्या रहता है हमारा? ये था a by sin a is equal to b by sin b is equal to c by sin c. सो यहाँ से b और c हम पिक कर लेते हैं. सो b by sin b is equal to c by sin c. So what is b? अब यहाँ से ये रिलेशन ले लेते हैं हम. b by c यहाँ से कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ के b by c is equal to sin b by sin c. Now what is b by c? √3 by √2. What is sin b? b कितना था? 60, तो sin 60 आ गया by sin c हो गया. तो ये कितना आ गया? √3 by √2. 60 का मतलब √3 by 2 into sin c. तो √3 कैंसिल हो गया, तो sin c कितना आ गया? sin c आ गया आपका √2 by 2. तो sin c कितना आ गया आपका? 1 by √2. तो c कितना आ गया? 45 डिग्री. अब आपके पास b भी था, b इज व्हाट? 60 डिग्री. तो a कितना आ गया? 60 प्लस 40 105 डिग्री. एंगल a कितना हो गया आपका? 75 डिग्री. ठीक है यश? यश ठीक है, sir. क्लियर हुआ? ठीक है. Yes, sir. So homework is again complete NCERT, all the solved examples. अगर कुछ रह गया then do that. After that supplementary जो आपका पोर्शन है वो है, please note the page number. पेज नंबर 466 पे है NCERT में. 466 में इसमें ट्राई टू डू, स्टार्ट कीजिए. ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए जितने भी हो सकते हैं. एक्सरसाइज 3.5 है इसमें. फिर नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं. ठीक, ओके देन, थैंक यू. Thank you, sir. सर यू आर वेलकम. सर एक मिनट बस.